8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। कागजी निवेश धरातल पर कब तक उतरेगा, देखना यह दिलचस्प होगा। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के विकास पथ का ध्वजवाहक बने। Mayor of Gerrards Cross, a town in Buckinghamshire, close to London, and I'm chair of the Gerrards Cross Town Council. So it's a real big honour to be invited here by the Chief Minister. And first time visiting Bhopal, and I really loved the city because it is super clean, I would say. And जो भी एयरलाइन यहाँ आए एमपी में, वो बस इन्वेस्टमेंट और पैसा लेके जाते हैं एमपी से, कोई इन्वेस्टमेंट डालता नहीं है। यहाँ से कमाते हैं और जाते हैं और वापस कुछ नहीं डालते हैं। हमने गवर्नमेंट को बोला है कुछ लाइसेंसेस दिलाने में हमको मदद करेंगे, उसमें गवर्नमेंट अगर हेल्प करेगी तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में निवेशक आने का मतलब ये है कि यहाँ के बच्चे यहीं रहेंगे, रास्ते में उनके पेरेंट्स को देखने के लिए वो भोपाल में ही होंगे या मध्य प्रदेश में ही रहेंगे अपने परिवार के साथ। वॉलेंटियर्स हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते हैं कि वो लोग आएँ और इन्वेस्ट करें एमपी में। दुबई से हम लोग करीब 80+ लोग आए हैं। तो काफ़ी जहाँ है जानने को मिला है किस टाइप के लोग हैं, कितने अच्छे हैं, कितना इनोवेशन है सबका। बहुत अच्छा अनुभव रहा और इस स्तर के ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार की नीतियाँ स्टार्टअप को बहुत सहयोग कर रही हैं। इस इवेंट के थ्रू उनको काफ़ी जानकारी मिली कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर करियर कहाँ। शेफ हूँ और क्लाउड किचन ऑनर हूँ। स्टार्टअप ऑन किया हुआ है मैंने भोपाल में। My name is Prerna Bharadwaj. I'm the Mayor of Gerrards Cross, a town in Buckinghamshire, close to London, and I'm chair of the Gerrards Cross Town Council. So it's a real big honour to be invited here by the Chief Minister, and also Aditya Pratap Singh ji has kindly invited me here for the Global Brilliance Forum, and I'm really happy to be in such a beautiful state of Madhya Pradesh. It's really gorgeous. So, okay, the people are amazing. I've been to do all the darshans and all the temples, and the hospitality is great as well. So thank you very much. Hi, I'm Madiha and I'm working as a research analyst at Center for Study of Science, Technology and Policy. And Which city? It's based out of Bangalore and Noida. Today we attended the pre-bid RESCO meeting for the various projects which government is actually initiating for government buildings. So it's a good initiative related to the solar rooftop in country, and I could see a lot of developers and other stakeholders here who would benefit from this initiative. So overall MP is really doing a great stuff in the rooftop solar as well as like a completely renewable energy, I would say. How are you feeling and what do you think about the possibilities to invest in MP and job in Bhopal and RE has been a sector which will definitely increase a lot of, will be having a lot of job, will open a lot door to a lot of job opportunities basically, be it in engineering, procurement and construction like the APC ones or any other domain. So definitely these initiatives are really gonna basically increase the job capacity in all the sectors related to RE or the energy sector. say something about Bhopal? So basically this was my first time visiting Bhopal, and I really loved the city because it is super clean, I would say, and the air is really fresh, I would say. So yeah, it's good, and I really didn't interact much with the people, but I would love to definitely because it's been just a second day here. That's all. मेरा नाम है मार्क डी मार्टिन, मैं मार्टिन कंसल्टिंग और पंजान एयर से हूँ। मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप देखना चाहें तो जो अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश में जो हम देखना चाह रहे हैं वो है सिविल एविएशन के लिए और रीजनल कनेक्टिविटी में गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने काफ़ी प्रोग्रेसिव सिविल एविएशन पॉलिसी निकाली है और ये काफ़ी स्कोप और अपॉर्चुनिटी देती है कंपनियों के लिए ताकि वो यहाँ आ जाए और एविएशन सर्विसेज शुरू करे और स्टार्ट करे। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी टूरिज़म पोटेंशियल है, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत अंडरसर्व्ड है एयरलाइन से और ये बदलना चाहिए। एमपी के स्टेट में करीब 16 से ज़्यादा अभी 24 एयरपोर्ट आ चुके हैं और अगर इस डेटा को देखा जाए तो काफ़ी फोकस होना चाहिए एविएशन के लिए। एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। मैं होप करता हूँ कि जितना जल्दी सरकार फैसिलिटेट करे इन्वेस्टर्स को और कंपनियों को ताकि यहाँ पे आके उनकी सर्विसेज शुरू हो जाए। सरकार से आप किन सुविधाओं की अपेक्षा रखते हैं? आप मध्य प्रदेश में आए, आप निवेश करें, कोई भी एक इन्वेस्टर तो देखिए, जब अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे जो भी एयरलाइन यहाँ आए हैं एमपी में, वो बस इन्वेस्टमेंट और पैसा लेके जाते हैं एमपी से, कोई इन्वेस्टमेंट डालता नहीं है। और अगर आप ये देखें जो सर्विसेज हैं, जो एयरलाइन सर्विसेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के हैं या मुंबई के हैं और ये
यहाँ से कमाते हैं और जाते हैं और वापस कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन वो चेंज होना चाहिए। इट्स हाई टाइम इट चेंज। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए ताकि कंपनी एक तो आ जाए यहाँ पे ऑपरेशन सेटअप करे और यहाँ पे एयरलाइन चलाएं। और यही फोकस और ऑब्जेक्टिव है अभी। हूँ जयश्री नायर, डायरेक्टर ANGC ग्रुप से। हम मध्य प्रदेश, भोपाल से ही। मध्य प्रदेश में जितने भी निवेशक आते हैं, निवेश करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है कि भूमि मिले। उसके बाद निवेशकों को वो सारी सुविधाएं मिले जो एक परिपूर्ण तरीके से एक इंडस्ट्री को कामयाब बना सकता है, तो उसमें हम पूरी मदद करते हैं। जो अभी CM साहब का ये उद्देश्य था कि टेक्सटाइल को, फार्मास्यूटिकल को, ग्रीन एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को, इनको आगे बढ़ाया जाए और इनके लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्टअप के लिए जो उन्होंने चाहा था कि नई पॉलिसी लाए, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाए, इसके लिए ये एक जो कार्यक्रम समावेश बना है, इससे ये निवेशक भी बहुत प्रेरित हुए हैं। स्टार्टअप्स और आने वाले जो उद्यमी हैं उनके लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता बना है, एक मार्गदर्शक के रूप में काम हुआ है। सरकार और आपकी कंपनी के बीच MOU साइन हुआ है? नहीं, अभी कोई MOU नहीं साइन हुआ है। हम आगे चाहेंगे कि ऐसा MOU हो जिसमें कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आए। मध्य प्रदेश में निवेशक आने का मतलब ये है कि यहाँ के बच्चे यहीं रहेंगे और आगे के लिए उनकी रास्ते में उनके पेरेंट्स को देखने के लिए वो भोपाल में ही होंगे या मध्य प्रदेश में ही रहेंगे अपने परिवार के साथ। मुंबई से आया हूँ। आपकी कंपनी KMEW। क्या टर्नओवर है? टर्नओवर मिनिमम ये हमारे अकाउंटिंग है 200 पहला कनक केवल रमानी मुंबई से आए जी। कंपनी के नाम KMEW। किस फील्ड से रिलेटेड है? अभी हम नर्मदा से सरदार सरोवर तक क्रूज़ बनाने का, क्रूज़ टर्मिनल और क्रूज़ उसको डेवलप करने के लिए MOU साइन किए। लगभग क्या टर्नओवर? 200 करोड़ का टर्नओवर। तो पहले मध्य प्रदेश सरकार के साथ काम करते हैं? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मध्य प्रदेशी हूँ, तो इसके लिए रूट्स यहाँ के। कंपनी की बात? कंपनी तो बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई है। तो MP सरकार के साथ कंपनी का MP सरकार नहीं, हम दूसरे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। रिवर गंगा में भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो अभी नर्मदा में क्या संभावनाएं आप देखती हैं? यहाँ पर आप आई हैं, सरकार ने बड़ी आशा से आप लोगों को आमंत्रित किया है, आप लोग भी आए कि कुछ अच्छा हो। क्या सकारात्मक आपके विचार चल रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा एजेंडा है गवर्नमेंट का। हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके MP टूरिज्म को काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं। MOU साइन हो चुका है आपका? हाँ जी, MOU साइन। हाँ जी। कितना क्या करीब उसका अमाउंट नहीं है कि क्रूज़, हम लोग 3 क्रूज़ बनाएंगे। एक लग्जरी क्रूज़ बनेगा, एक बजट क्रूज़ बनेगा और एक 1 डे का क्रूज़। उस तरीके से प्लान कर रहे हैं। सरकार से क्या आपको सुविधाएं मुहैया कराएं? हमने गवर्नमेंट को बोला है कुछ लाइसेंसेस दिलाने में हमको मदद करेंगे, और वो लाइसेंस अगर इन प्लेस हो जाते हैं, सब्सिडी है, लाइसेंसेस हैं, उसमें गवर्नमेंट अगर हेल्प करेगी तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। लीना वैद्य, फ्रेंड्स ऑफ MP अबू धाबी चैप्टर हेड। बहुत अच्छा अनुभव रहा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी और सबसे बड़ा तो अमित शाह जी ने, और जैसा कि मोहन जी यादव ने अनाउंस किया कि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट, करीब 30,77,000 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट वो बता रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे MP के लोगों को रोज़गार मिलेगा, MP का डेवलपमेंट होगा। और बीइंग MP पर्सन हम यही चाहेंगे कि MP भारत के मैप में एक अच्छी डेवलप्ड स्टेट बने। क्या टर्नओवर आपकी कंपनी नहीं, हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से ही, गवर्नमेंट के वॉलेंटियर्स हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते हैं कि वो लोग आएँ और इन्वेस्ट करें MP में। सो दुबई से हम लोग करीब 80+ लोग आए हैं, सब साथ में आए हैं। जी हाँ जी, मेरा नाम अदिति सिंह है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं सस्टेनेबल सर्विसेज की तरफ से हूँ, टेरी की तरफ से हूँ। किस शहर से हैं? मैं भोपाल से ही हूँ जी। तो यहाँ पे कितना निवेश कर रहे हैं? मैं पूरे 2 दिन से यहाँ हूँ। पूरे यहाँ पे जितने भी सेशंस हैं मोस्टली मैंने अटेंड किए हैं, तो काफ़ी जहाँ है जानने को मिला है किस टाइप के लोग हैं, कितने अच्छे हैं, कितना इनोवेशन है सबका, और कितना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं एक स्टार्टअप और बिजनेस के लिए। तो ये पूरा देखा जाए तो MP के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगी हमारा। जिस कंपनी के लिए आप काम करते हो उसका टर्नओवर
जी, हमारे कंपनी का टर्नओवर अभी शुरुआत है, तो हम लास्ट ईयर 10 करोड़ प्लस में थे, अब हम 50 पर पार कर चुके हैं। MOU वगैरह नहीं मिला, मतलब इसका कोई विचार नहीं था आपका? जी नहीं, अभी फ़िलहाल हमने इसका देखने के लिए आए ही थे, तो उस हिसाब से तो नहीं हमने कुछ मिला। मेरा नाम मदिहा रेशमवाला है। मेट एंड माइस्ट्रो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मैं को पार्टनर हूँ। किस शहर से? मैं भोपाल से हूँ जी। तो क्या आपके अनुभव रहे? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और इस स्तर के ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, तो सभी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने सारे लोगों से मिलना हुआ, नेटवर्किंग हुई, और काफ़ी लोगों से यहाँ पर नई नई इन्वेस्टमेंट और नई नई जो पॉलिसीज़ आई है उसके बारे में हमें पता चला। मेरा नाम शीरीन हैगा और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। नाम मीनल मुंशी है, मैं रीस्कोप की डायरेक्टर हूँ। मेरा एक स्टार्टअप है। ये बहुत अनूठी पहल है जो सरकार ने की है, इससे और मध्य प्रदेश सरकार की नीतियाँ स्टार्टअप को बहुत सहयोग कर रही हैं, और आने वाली जो नीति बनी है मुझे बिल्कुल लगता है कि वो सहयोग करेगी हमारे युवाओं को। कुछ है निवेश का? ऑलरेडी निवेश है? ऑलरेडी हमारा तो सर खुद का निवेश है अभी, पर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया? अभी हमने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है हमारे स्टार्टअप में। आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम भाग्यश्री है, और मुझे लगता है कि ये जो इवेंट था ये काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे यूथ को बहुत कुछ पता चला। जैसे आज के जनरेशन में लोगों को स्टार्टअप्स और इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत दिलचस्पी है, तो इस इवेंट के थ्रू उनको काफ़ी जानकारी मिली कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर, करियर कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं हम चीज़ें। आपका क्या शुरू है? मेरा नाम अमित अग्रवाल है, और मैं एक शेफ़ हूँ और एक क्लाउड किचन ऑनर हूँ। स्टार्टअप ऑन किया हुआ है मैंने भोपाल में। हम लोग नेटवर्किंग के लिए आए थे, जिससे मिलाकर के हमारे विभिन्न सेक्टर में 85 से अधिक MOU हुए हैं। NHI PWD के बीच जो मैंने बताया 1.30 लाख करोड़ का हमारा MOU ये उल्लेखनीय है। आज इस समिट का समापन इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ हो रहा है। यह केवल निवेश का मंच नहीं, बल्कि विचार मंथन, नीति निर्माण एवं भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। मध्य प्रदेश की यात्रा रुकेगी नहीं। हम निवेशकों के विश्वास को मजबूती देंगे, नई नीतियां लागू करेंगे, आधारभूत संरचना को और सशक्त करेंगे, प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। JIS 2025 का समापन केवल एक आयोजन का अंत नहीं है, उद्योग एवं रोजगार 2025 की सफल शुरुआत है। मैं बता 2 दिवसीय GIS की समाप्ति हुई। देश और विदेश के काफ़ी निवेशक यहाँ पर आए। सरकार का कहना है कि निवेशक काफ़ी उत्साहित हैं और लगभग 30 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। इसके पहले भी आपको जानकारी दे दें कि ये 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इसके पूर्व 2007 से लेकर अभी तक जो 7 समिट हुई हैं, उनमें भी 12,000 MOU आए थे, जिनमें से 369 ही धरातल पर उतर सके, जिसमें 7,000 लोगों को लगभग रोजगार मिला है। सरकार के दावे बहुत बड़े हैं। कहना है कि काफ़ी लाखों करोड़ का निवेश आया है तो काफ़ी रोजगार भी मिलेगा, लेकिन ये कागजी निवेश धरातल पर कब तक उतरेगा, देखना यह दिलचस्प होगा। अभी तक आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश में बिरला का निवेश सबसे बड़ा है, जो कि 33,000 करोड़ रुपए का है। इससे ऊपर अडानी जी भी कह के गए हैं कि हम 1 लाख करोड़ का निवेश 2030 तक करेंगे, लेकिन कब तक ये सब संभावनाएं हैं, बातें हैं, धरातल पर कब तक उतरेंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे द राष्ट्र। धन्यवाद।